بارش رک گئی تھی۔ شیر خان غار کے دہانے پر سو رہا تھا۔ بارش کی آواز بھی رک گئی۔ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ شیر خان کو محسوس ہوا تھا کہ نیند میں سے اس نے کوئی آواز سنی ہے۔ جنگل میں اندھیرا تھا، خاموشی تھی، صرف درختوں پر سے کسی وقت بارش کے رکے ہوئے قطروں کے ٹپ ٹپ گرنے کی آواز آ جاتی۔ شیر خان سرکنڈوں کو تھوڑا سا ہٹا کر اندھیرے میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس نے جو آواز سنی تھی وہ کیا تھی، یہ سوچ کر کہ خواب کی حالت میں کوئی آواز سنی ہوگی۔ وہ سرکنڈوں سے پیچھے ہٹ گیا اور ساوتری کی طرف دیکھا۔ غار کے اندھیرے میں وہ فرش پر سوئی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ شیر خان واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس نے آنکھیں بند کر لی۔ ابھی بہت رات پڑی تھی۔ صبح ہونے تک اسے اس طرح کبھی اونگ کر اور کبھی جاگ کر رات گزارنی تھی۔ اسے پھر وہی آواز سنائی دی۔ اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی اور اس آواز پر کان لگا دیے۔ یہ آواز غار کے دہانے کے آگے جو سرکنڈے تھے ان کے پیچھے سے آئی تھی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی بھاری شے درخت پر سے نیچے گری ہو۔ شیر خان کو یہی خیال آیا کہ شاید درخت کا کوئی ٹہنا ٹوٹ کر نیچے گرا ہے۔ اس آواز کے بعد رات کے اندھیرے میں جنگل پر سناٹا طاری ہو گیا۔ صرف کسی وقت درختوں پر بارش کے رکے ہوئے قطروں کے گرنے کی ٹپ کی آواز آ جاتی۔ اس کے بعد پھر وہی محیب سناٹا چھا جاتا۔ کمانڈو شیر خان اب پوری طرح بیدار تھا اور جنگل کی خاموشی پر کان لگائے ہوئے تھا۔ پھر ایسی آواز آئی جیسے کوئی پانی میں چل رہا ہے۔ آواز دور سے آ رہی تھی۔ شیر خان نے اٹھ کر غار کے آگے آئے ہوئے سرکنڈوں کو ذرا سا ایک طرف کر کے دیکھا۔ وہ کبھی پوری آنکھیں کھول کر اور کبھی سکیڑ کر دیکھتا۔ سامنے ٹیلے کی ڈھلان تھی جہاں اندھیرے میں چھوٹی بڑی جھاڑیاں بالکل ساکت تھیں۔ باہر کہیں پانی بھی نہیں کھڑا تھا۔ پھر یہ پانی میں چلنے کی آواز کیسی تھی؟ وہ باہر نکل کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس کوئی اسلحہ ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ 10-15 سیکنڈ تک وہ سرکنڈوں کو پیچھے ہٹائے ساکت کھڑا اندھیرے میں کچھ دیکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر اسے کوئی شے حرکت کرتی نظر نہ آئی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہٹا اور غار کی دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے بتا دیا تھا کہ جنگل کی اندھیری فضا میں کوئی شے موجود ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ آواز بڑی صاف تھی، کوئی جھاڑیوں میں سے گزر کر غار کی طرف آ رہا تھا۔ شیر خان ایک دم اٹھا اور غار کے دہانے کے بالکل سامنے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سرکنڈوں کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ اس کی چھٹی حس نے اسے یوں خبردار نہیں کیا تھا۔ اندھیرے میں سے ایک کافی بڑا ریچھ نظر آیا جو جھومتا جھومتا غار کی طرف آ رہا تھا۔ کالے رنگ کا یہ ریچھ بہت بڑا تھا۔ غار کے دہانے میں ریچھ کے واسطے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ شاید یہ غار بھی اسی کا تھا اور وہ اپنے غار میں آرام کرنے ہی چلا رہا تھا۔ شیر خان اکیلا ریچھ کو ہلاک نہیں کر سکتا تھا۔ ریچھ کے پنجوں کے ناخن تیز چھریوں کی طرح ہوتے ہیں اور وہ ایک سیکنڈ میں دشمن کی انتڑیاں باہر نکال دیتا ہے۔ شیر خان کے پاس کوئی بندوق، پستول تو درکنار کوئی چھوٹا سا چاقو بھی نہیں تھا۔ بغیر چاقو یا کسی ہتھیار کے اتنے بڑی جنگلی ریچھ کا مقابلہ کرنا موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ لیکن غار کے اندر ساوتری سو رہی تھی۔ شیر خان کے لیے ابھی زندہ رہنا ضروری تھا۔ وہ اس قسم کی موت کے آگے ہتھیار ڈالنے کو ہرگز تیار نہیں تھا۔ نہتہ ہونے کے باوجود وہ ریچھ سے مقابلہ کرنے کو تیار تھا۔ اس کی رگیں اور بازوؤں کے پٹھے تن گئے۔ وہ سرکنڈوں کو ایک طرف ہٹائے جنگل کے اندھیرے میں ریچھ کو اپنی طرف آتے دیکھ رہا تھا۔ اچانک جنگل کی فضا شیر کی دھاڑ سے گونج اٹھی۔ خدا جانے یہ شیر اس وقت کہاں سے نمودار ہو گیا تھا۔ شیر خان اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ قدرت اس کی مدد کر رہی تھی کیونکہ ابھی شیر خان کی زندگی باقی تھی۔ شیر کی دھاڑ کی آواز سنتے ہی ریچھ جو غار کے دہانے کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا وہیں رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پچھلے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنے اگلے پنجوں کو زور زور سے سینے پر مارنے لگا۔ شیر ایک بار پھر دھاڑا۔ اس کی گرجدار دھاڑ بہت قریب سے آئی تھی۔ ریچھ پر شیر کی ہیبت طاری ہو گئی۔ اس نے اگلے دونوں پاؤں زمین پر لگائے اور بڑی تیزی سے جس طرف سے آیا تھا اسی طرف دوڑ پڑا اور شیر خان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شیر خان نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اسے معلوم تھا کہ ریچھ اب کم از کم صبح تک اس غار کا رخ نہیں کرے گا۔ شیر کی دوسری دھاڑ سن کر ساوتری جاگ پڑی تھی۔ وہ ڈری ہوئی آواز میں جیسے کراہنے لگی۔ شیر خان جلدی سے اس کے پاس آ گیا اور اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوا، شیر آیا تھا چلا گیا ہے۔ پھر اس نے ساوتری کو سارا واقعہ سنایا۔ ساوتری سخت ڈری ہوئی تھی۔ شیر خان کو تو جاگنا ہی تھا لیکن باقی کی رات ساوتری بھی نہ سو سکی۔ دن کا اجالا نمودار ہوا تو شیر خان بولا، میرا خیال ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ ساوتری نے ڈرتے ڈرتے کہا، کہیں باہر شیر نہ ہو۔ شیر خان بولا، شیر تو رات کو بھی اس طرف نہیں آیا تھا، ریچھ آیا تھا، وہ شیر کی گرج سن کر بھاگ گیا، اب ادھر ریچھ آئے گا نہ شیر۔ ساوتری پھر بھی ڈر رہی تھی۔ وہ شیر خان کے پیچھے چلتی غار سے باہر نکل آئی۔ شیر خان نے پوچھا، تمہارے خیال میں اب ہمیں کس طرف کا رخ کرنا چاہیے کہ ہم دریا تک پہنچ سکیں؟ ساوتری نے ایک طرف اشارہ کیا۔ اس طرف ایک اونچا ٹیلا کھڑا تھا۔ اس نے کہا، اس ٹیلے کی دوسری طرف دریا ہے، ہمیں اس دریا کے گھاٹ سے کٹھیالی جانے والی کشتی مل جائے گی۔ اس وقت کٹھیالی ہی شیر خان کی منزل تھی کیونکہ کٹھیالی میں ساوتری کے ماما جی کا گھر تھا۔ کٹھیالی ریلوے اسٹیشن بھی تھا۔ شیر خان نے کٹھیالی میں ساوتری کو چھوڑ کر وہاں سے آگے لکھنؤ کی بجائے بھارت کے صوبہ بہار یا بنگال کی طرف نکل جانا تھا کیونکہ لکھنؤ میں اس کے پکڑے جانے کا زبردست خطرہ تھا۔ وہیں سے تو وہ فرار ہو کر بھاگا تھا اور اب تک اس کے فرار کی لکھنؤ کی سول پولیس اور ملٹری انٹیلیجنس کو یقیناً خبر ہو چکی ہوگی۔ ٹیلے کو عبور کرتے ہوئے انہیں دن کے 11-12 بج گئے، لیکن یہ دیکھ کر کمانڈو شیر خان کو حوصلہ ہوا کہ ٹیلے کی دوسری طرف دریا بہ رہا تھا مگر وہاں نہ کوئی بستی تھی اور نہ کوئی گھاٹ ہی تھا۔ ساوتری نے کہا، فکر نہ کرو، ہم دریا کے ساتھ کچھ دور چلیں گے تو گھاٹ آ جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ دریا کے ساتھ ساتھ وہ کوئی 1.5 فرلانگ چلے ہوں گے کہ ایک گھاٹ آ گیا جہاں بہت سی کشتیاں کھڑی تھی۔ کسی کشتی میں بانس وغیرہ لدے ہوئے تھے، ایک کشتی میں کچھ مسافر بیٹھے تھے۔ ساوتری نے شیر خان سے کہا، ہمارے پاس تو کشتی کا کرایہ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ شیر خان بولا، تم یہیں ٹھہرو،
मैं आगे जाकर कश्ती के मांझी से बात करता हूँ। कश्ती का मल्लाह उथेड़ उम्र का आदमी था। कश्ती के डांट के पास खड़ा किसी लड़के से ऊंची आवाज में बोल रहा था। शेर खान उसके पास जाकर कहने लगा, दादा भाई, हम राम प्रसाद बनवारी हैं, कठियाली के थाने का नया मुहर्रर हूँ। अपनी पत्नी को गांव से लेकर आ रहा था कि रास्ते में रात हो गई। हम सो गए। किसी चोर ने मेरी जेब से बटुआ चुरा लिया। अब हमारे पास कश्ती का किराया नहीं है, तुम हमें दरिया पार करवा दो, मैं थाने पहुंचते ही तुम्हें किराया भिजवा दूंगा। कुछ पुलिस थाने और कुछ शेर खान के मौसर अंदाज़े गुफ्तगू का मांझी पर असर पड़ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज बैठ जाइए, दरिया पार कराए देता हूँ, पैसों की क्या है, आ जाएंगे, ना भी आए तो क्या फिक्र है। शेर खान सावित्री को लेकर कश्ती में बैठ गया, जिसमें पहले ही से काफी मुसाफिर बैठे हुए थे। सावित्री ने घूंघट निकाल लिया था, क्योंकि दरिया पार उसके मामा का घर था। कश्ती दरिया में चल पड़ी। दरिया के रुख पर कोई 4-5 मील का फासला तय करने के बाद कश्ती दूसरे किनारे की तरफ मुड़ गई। दिन की रोशनी में दरिया के दूसरे किनारे पर दरख्तों के पीछे कुछ मकानों के खाके नजर आ रहे थे। यही कठियाली का कस्बा था। ये काफी बड़ा कस्बा था, जहाँ पुलिस का थाना भी था और डाक खाना भी था। कस्बे की आबादी काफी दूर तक फैली हुई थी। एक जानिब कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन था, जिसके सिग्नल दूर से दिखाई दे रहे थे। सावित्री शेर खान को लेकर अपने मामा के मकान की तरफ जा रही थी। कहने लगी, तुमने मांझी को क्या कहा था? शेर खान ने जवाब दिया, कुछ नहीं कहा था, बस यही कहा था कि हमारे पास किराया नहीं है, बड़ी दूर से पैदल आ रहे हैं, दरिया पार करवा दो बस। सावित्री खामोश हो गई। वो कठियाली कस्बे की बस्ती की एक बाहर वाली आबादी के एक बाजार में से गुजर रहे थे। फिर सावित्री एक तंग सी गली में दाखिल हो गई। यहाँ गली के कोने में उसके मामा का मकान था। सावित्री को अचानक देखकर उसके मामा और मामी, उनकी जवान बेटी हैरान भी हुए और खुश भी। उन्हें सावित्री के अगवा होने की खबर मिल चुकी थी। सावित्री की मुमानी ने उसे गले से लगा लिया। मामा ने बोला, सावित्री बेटी, ये तुम्हारे साथ कौन है? सावित्री ने कहा, मामा जी, ये मेहदी खान है, इसने मुझे उन गुंडों के चुंगल से निकाला है जो मुझे अगवा करके ले गए थे। अगर मेहदी जी मेरी मदद न करते तो भगवान जाने अब तक मेरा क्या हाल हो चुका होता। मामा जी ने शेर खान से हाथ मिलाते हुए कहा, भगवान आपको खुश रखे, आपने हमारे खानदान पर बड़ी कृपा की महाराज। सावित्री की मामूजात बहन का नाम लीला था। लीला ने कहा, सावित्री, पहले तुम जल्दी से दूसरी साड़ी पहन लो, फिर हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सावित्री की मुमानी ने शेर खान से कहा, भैया तुम भी मुंह हाथ धो लो। सावित्री के मामा जी ने शेर खान से कहा, भाई जी तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे हैं, मेरी पतलून पहन लेना बेशक। शेर खान ने कहा, शुक्रिया भाई साहब, लखनऊ जाकर बदल लूंगा। आपका घर लखनऊ में है क्या? मामा जी ने पूछा। शेर खान बोला, जी हाँ, मैं लखनऊ के करीब ही अपने एक दोस्त की हवेली में रह रहा हूँ। दरअसल मैं मुरादाबाद से अपने दोस्त के यहाँ आया था। मामा जी ने पूछा, आपके दोस्त क्या करते हैं? शेर खान ने वही पुरानी कहानी सुना दी। बात यह है कि मेरा दोस्त बड़ा अच्छा शिकारी है और मुझे शिकार का शौक है। मैं शौकिया शिकारी हूँ। कभी कभी मुरादाबाद से अपने दोस्त के पास लखनऊ आ जाता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर जंगल में शिकार खेलने चल देते हैं। बस यही मेरा और मेरे दोस्त का शौक है। इस दफा हम जंगल में शिकार खेलते हुए काफी आगे निकल गए और रास्ता भूल गए, और बदकिस्मती ये हुई कि शाम का वक्त था। अचानक एक तरफ से रीछ निकल आया। हमने उस पर बंदूक के फायर भी किए, लेकिन रीछ ने भागने की बजाय हम पर हमला कर दिया। उसके बाद हम दोनों भाग उठे, मेरा दोस्त एक तरफ को और मैं दूसरी तरफ को। बस उसके बाद हम एक दूसरे से बिछड़ गए। जंगल में रात हो गई। मैं एक तालाब के किनारे जंगली दरिंदों के डर से दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। फिर मुझे सावित्री जी के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्हें गुंडे पुजारी राम तलाई की गुफा में बांध कर चले गए थे। मैंने जल्दी जल्दी उनकी रस्सियां खोली और उन्हें साथ लेकर जंगल में चल पड़ा। असल में अब सावित्री जी मेरी गाइड बन गई थी। उन्हें जंगल का दरिया के घाट की तरफ जाने वाले रास्ते का कुछ अंदाजा था। चुनाचे हम रात भर जंगल में चलते रहे और सुबह दरिया पार पहुंच गए। फिर वहां से एक कश्ती में सवार हुए और आपके घर आ गए। सावित्री का मामा दुबला पतला उथेड़ उम्र का हिंदू था। सर के बाल उड़े हुए थे और आंखों में बड़ी अय्याराना सी चमक थी। वो बड़ी दिलचस्पी और पूरे यकीन के अंदाज में कमांडो शेर खान की गुफ्तगू सुन रहा था। जब शेर खान ने अपनी बात खत्म की तो सर हिलाते हुए तहसीन आमेज लहजे में बोला, महाराज आप बड़े बहादुर नौजवान हैं, आप न होते तो हमारी बच्ची कभी अपने घर वापस ना आ सकती थी। हाथ मुंह धोकर ताज़ादम होने के बाद खाना खाया गया। उसके बाद फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सावित्री के मामा जी ने सावित्री के घर इस दौरान फोन करवाकर उन्हें ये खुशखबरी सुना दी कि सावित्री उनके पास पहुंच चुकी है और वो कल खुद उसे लेकर आ रहे हैं। सावित्री ने दूसरी साड़ी पहन ली थी और अपनी मुमानी के पास बैठी बातें कर रही थी। उथेड़ उम्र और जीरक आंखों वाला मामा शेर खान की बातें बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था और बात बात पर वाह वाह कह रहा था। इतने में शाम हो गई। शेर खान ने कहा, अब मुझे इजाजत दें, मैं जल्दी लखनऊ पहुंचकर मालूम करना चाहता हूं कि मेरा दोस्त भी वापस आ गया है या अभी तक जंगल ही में भटक रहा है। सावित्री के मामा ने कहा, इस वक्त तो कोई गाड़ी लखनऊ की तरफ नहीं जाती, अब तो सुबह मुंह अंधेरे कलकत्ता मेल आएगी, उसमें बैठकर चले जाना, रात हमारे पास ही रह जाओ, सुबह मैं तुम्हें खुद गाड़ी में बिठाऊंगा। शेर खान के नजदीक ये लोग बिल्कुल बेजरर थे। उसने सोचा कि चलो रात भर आराम कर लेते हैं, सुबह कोई गाड़ी पकड़ लेंगे। वो सावित्री के मामा को ये तो बता नहीं सकता था कि उसने लखनऊ की तरफ जाना नहीं बल्कि कलकत्ते की तरफ जाने वाली कोई ट्रेन पकड़नी है। ये सोचकर कि हो सकता है रात को उसे कलकत्ता की तरफ जाने वाली कोई गाड़ी न मिले, उसका ये तजुर्बा था कि रात के वक्त आमतौर पर मेल ट्रेनें ही आती हैं
और मेल ट्रेनें कठियाली जैसे कस्बाती स्टेशनों पर नहीं रुकती। दिन के वक्त उसे कोई पैसेंजर ट्रेन वगैरह पटना की तरफ जाती मिल सकती थी। चुनाचे ये सोचकर उसने वहीं रात गुजारने का फैसला कर लिया। सावित्री के मामा का मकान दरमियाने दर्जे का था। एक कोठरी में चारपाई पर शेरखान का बिस्तर बिछा दिया गया। रसोई यानी किचन में रात के लिए सब्जी वगैरह पक रही थी। सावित्री अपनी मुमानी के पास बैठी उसका हाथ बटा रही थी। शेरखान ने सुबह सुबह वहाँ से स्टेशन की तरफ निकल जाने का सोच लिया था, चुनाचे वो जल्दी सो गया। इस घर में उसे बज़ाहिर किसी किस्म का कोई खतरा महसूस नहीं हुआ था। अब ऐसा हुआ कि रात के 11 बज रहे थे। सावित्री अपनी मामूजाद बहन लीला के साथ दूसरी कोठरी में सोई हुई थी कि उसे प्यास महसूस हुई। वो पानी पीने कोठरी से निकलकर किचन की तरफ जाते हुए अपनी मुमानी की कोठरी के करीब से गुजरी तो उससे मामा जी की आवाज आई। उन्होंने शेरखान यानी मेहदी खान का नाम लिया था। सावित्री वहीं रुककर दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगी कि मामा जी क्या कह रहे हैं। मामा जी उस वक्त अपनी बीवी को कह रहा था कि मुझे इस आदमी मेहदी खान पर शक है कि ये वही पाकिस्तानी जासूस है जिसके बारे में हमारे बॉस को आज सुबह इत्तला मिली थी कि वो जंगल वाले टॉर्चर सेंटर से फरार हो गया है। उसकी बीवी ने कहा हो सकता है ये वो आदमी ना हो। मामा ने कहा नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि ये वही पाकिस्तानी जासूस है। उसकी बीवी ने कहा तो फिर तुम क्या करोगे? मामा जी ने कहा मैं सुबह सुबह अपने ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास जाकर उसको इत्तला करके इसे गिरफ्तार करवा दूंगा। इस तरह मेरी तरक्की भी हो जाएगी। ये सुनकर सावित्री वहीं से वापस हो गई। कोने वाली कोठरी में शेरखान सो रहा था। सावित्री ने दरवाजे पर आहिस्ता आहिस्ता 3-4 बार ठक ठक की तो शेरखान की आंख खुल गई। वो जल्दी से उठकर दरवाजे के पास आया। उसने पूछा कौन है? सावित्री ने बड़ी धीमी आवाज में कहा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। शेरखान ने दरवाजा खोल दिया। सावित्री ने जल्दी से अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। कोठरी में चारपाई के कोने में नस्वारी शेड वाला पुराना लैंप रोशन था। शेरखान ने किसी कदर हैरानी के साथ सावित्री से पूछा क्या बात है? सावित्री ने कहा मेरे मामा जी को पता चल गया है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो। वो सुबह सुबह तुम्हें गिरफ्तार करवा देंगे। तुम इसी वक्त यहाँ से भाग जाओ। शेरखान जल्दी जल्दी अपनी बुशर्ट पहनने लगा। उसने पूछा तुम्हें कैसे पता चला? सावित्री बोली मैंने अभी अभी मामा जी को मुमानी से कहते सुना है कि मेहदी खान पाकिस्तानी जासूस है जो जंगल वाले टॉर्चर सेंटर से फरार हुआ था। शेरखान ने सावित्री से पूछा मकान के पिछले दरवाजे से कोई रास्ता है? सावित्री ने कहा नहीं, तुम ड्योड़ी वाले दरवाजे से निकल जाओ मगर दरवाजा खुलने की आवाज ना आए। शेरखान टेबल लैंप की रोशनी में बाहर निकलने लगा तो सावित्री ने उसे रोक दिया और धीमी आवाज में बोली यहीं ठहरो, मैं भी आती हूँ। वो आहिस्ता से दरवाजा खोलकर दबे पांव कोठरी से निकल गई। शेरखान चारपाई पर बैठ गया और सोचने लगा कि ये लड़की जो कुछ कह रही है अगर सच है तो मैं इसके एहसान को कभी भुला नहीं सकूंगा। कोई 1 मिनट के बाद सावित्री भी आ गई। उसने शेरखान के हाथ में रुमाल में लिपटी हुई कोई चीज पकड़ाई और बोली जल्दी से निकल जाओ, रास्ता साफ है। शेरखान ने 1 सेकंड के लिए सावित्री की तरफ देखा, फिर उसके सर पर हाथ रखकर बोला शुक्रिया मेरी बहन। उसके साथ ही वो दबे पांव कोठरी से निकलकर दालान में से गुजरकर ड्योड़ी में आ गया। ड्योड़ी का दरवाजा बंद था, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। उसने बड़ी एहतियात के साथ कि आवाज पैदा न हो कुंडी को खोला। फिर वो ज्यादा एहतियात के साथ दरवाजे के एक पट को थोड़ा सा पीछे किया और फौरन मकान से निकल गया। कठियाली कस्बे के बाजार सुनसान पड़े थे। रात का गहरा सुकूत हर तरफ छाया हुआ था। ये कोई शहर नहीं था। आधी रात का वक्त हो रहा था। कहीं कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं थी। कोई टैक्सी रिक्शा भी नहीं था। एक खेत के पास आकर शेरखान ने सबसे पहले उस रुमाल को खोला जो सावित्री ने जाते वक्त उसके हाथ में पकड़ाया था। उसमें 100 रुपए के नोट और 2 10-10 रुपए के नोट थे। कमांडो शेरखान को अपनी छोटी बहन याद आ गई और उसकी आंखें नमनाक हो गईं। मगर ये वक्त इस किस्म की जज्बाती बातों का नहीं था। दिन के वक्त ही उसने दूर से देख लिया था कि कठियाली का रेलवे स्टेशन किस तरफ है। वो रेलवे स्टेशन की तरफ पैदल ही जा रहा था। सावित्री की ज़बानी ये पता चल जाने के बाद कि लखनऊ पुलिस और इंटेलिजेंस को उसके फरार का इल्म हो चुका है, शेरखान ने लखनऊ मुरादाबाद की तरफ जाने का ख्याल दिल से निकाल दिया। उस तरफ पुलिस और इंटेलिजेंस उसकी तलाश में जगह जगह छापे मार रही होगी। उस तरफ जाना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। चुनाचे रेलवे स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते उसने फैसला कर लिया कि वो बंगाल की तरफ निकल जाएगा। बंगाल के शहर कलकत्ते में उसका एक कश्मीरी साथी शालों का कारोबार करता था। शेरखान ने सोच लिया था कि उसके पास जाना बेहतर रहेगा। कुछ दिन वहाँ गुजार कर जब हालात जरा ठीक हो जाएंगे तो वो वहाँ से कश्मीर निकल जाएगा। अब सवाल ये था कि क्या उस वक्त उस कठियाली जैसे छोटे स्टेशन पर कलकत्ता जाने वाली कोई गाड़ी मिल सकेगी। उसके पास चंद 1 घंटे ही थे। सुबह होने से पहले पहले वो कठियाली से दूर निकल जाना चाहता था ताकि जब सावित्री का मामा पुलिस को उसकी मुखबरी करे तो वो पुलिस की हरकत में आने से पहले पहले कठियाली के इलाके से निकल चुका हो। जब वो कठियाली के मामूली से कस्बाती स्टेशन पर पहुंचा तो ये देखकर उसका दिल बैठ सा गया कि स्टेशन पर उल्लू बोल रहे थे। कोई मुसाफिर और कोई रेलवे का कुली तक नजर नहीं आ रहा था। उसने स्टेशन के दूसरी तरफ जाकर देखा कि वहाँ एक छोटी सी खिड़की के पीछे एक बूढ़ा सिख बैठा टिकटों पर मोहरे लगा रहा था। शेरखान जानता था कि सावित्री के मामा की मुखबरी के बाद पुलिस रेलवे स्टेशन पर आकर टिकट देने वाले सरदार जी से भी पूछेगी कि इस हुलिये का आदमी रात को स्टेशन पर आया था और सरदार जी पुलिस को बता देंगे कि रात को इस हुलिये का एक आदमी आया था और उसने फलां शहर का टिकट लिया था। चुनाचे शेरखान फौरन खिड़की से हट गया। वो सरदार जी को अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहता था। अब उसने यही सोचा कि कलकत्ते की तरफ जाने वाली जो भी गाड़ी आएगी, खा वो आधे रास्ते तक ही जा रही हो, वो उसमें बगैर टिकट के सवार हो जाएगा। रात का वक्त है। रात के वक्त ट्रेन में कोई टिकट चेकर नहीं आता। वो पिछली तरफ से
तारों का जंगला फलांग कर प्लेटफॉर्म पर आकर बैठ गया। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक दो खंभों की बत्तियां ही जल रही थी। प्लेटफॉर्म खाली था, कोई मुसाफिर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे इस स्टेशन पर कभी कोई गाड़ी खड़ी नहीं हुई। शेरखान को ये ख्याल भी था कि कहीं सावित्री के मामा को ये पता न चल जाए कि जिस पाकिस्तानी जासूस को उसने सुबह पुलिस के हवाले करना था वो फरार हो चुका है। फिर तो वो शख्स उसी लम्हे कठियाली के पुलिस थाने पहुंचकर इत्तला दे दे और पुलिस सबसे पहले रेलवे स्टेशन का ही रुख करेगी। मगर किसी भी रेलगाड़ी का दूर दूर तक नामो निशान तक नहीं था। शेरखान बेचैनी से उठकर इधर उधर टहलने लगा। किसी तरफ जाने वाली ट्रेन भी नहीं आ रही थी। प्लेटफॉर्म पर कोई स्टॉल भी नहीं था। एक बूढ़ा आदमी एक तरफ से चला रहा था। जब वो करीब आया तो कमांडो शेरखान ने उससे पूछा, बड़े मियाँ लखनऊ बरेली जाने वाली गाड़ी कब आएगी? उसने जानबूझकर लखनऊ बरेली का नाम लिया था। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहा था और नहीं चाहता था कि स्टेशन पर किसी को भी मालूम हो कि वो कलकत्ते की तरफ गया है। बूढ़े ने कहा, लखनऊ जाने वाली गाड़ी तो सुबह सवेरे आएगी, इस वक्त तो पटना जाने वाली पैसेंजर ट्रेन आ रही है। शेरखान ने दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि वो इस इलाके से कुछ देर बाद ही निकल जाएगा और ऐसा ही हुआ। कोई 20 मिनट ही गुजरे होंगे कि लखनऊ की जानिब से एक ट्रेन आकर रुकी। पैसेंजर ट्रेन थी। डिब्बों में मुसाफिर भरे हुए थे। अक्सर मुसाफिर सो रहे थे। इंजन ने रुकने के 2 मिनट बाद ही सीटी दे दी। कमांडो शेरखान इस दौरान एक डिब्बे में घुसकर दरवाजे के पास बैठ चुका था। दूसरे लम्हे ट्रेन चल पड़ी। लखनऊ से आगे बड़ा बनारस ही था। ट्रेन की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। बनारस भी लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन ट्रेन ने बनारस पहुंचते पहुंचते 3 घंटे लगा दिए। शेरखान को अब ये तशवीश हुई कि अगर ट्रेन इसी रफ्तार से चलती रही तो रास्ते में ही दिन निकल आएगा और ऐन मुमकिन है कि कठियाली पुलिस उसके बारे में अगले स्टेशनों की पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस को बाखबर कर दे। दूसरी फिक्र उसे ये भी लगी थी कि वो बगैर टिकट के सफर कर रहा था। पकड़ा गया तो एक नई मुसीबत में फंस जाएगा। चुनाचे उसने बनारस पहुंचने से पहले ये फैसला कर लिया था कि वो बनारस उतर जाएगा और वहां से आगे गया तो लारी में सफर करने की कोशिश करेगा। रात के 3 बजने वाले थे जब ट्रेन बनारस पहुंची। बनारस बहुत बड़ा रेलवे जंक्शन था, जहां टिकट के बगैर स्टेशन की इमारत से बाहर निकलना मुश्किल था। वैसे भी प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस के सिपाही इधर उधर चल फिर रहे थे। शेरखान ने अपना इरादा बदल लिया और ये सोचा कि वो गया के रेलवे स्टेशन पर उतर जाएगा। पैसेंजर ट्रेन दिन निकल चुका था जब गया पहुंची। ये काफी बड़ा स्टेशन था, मगर बनारस लखनऊ के मुकाबले में बहुत छोटा था। ये शहर पहले शेरखान ने नहीं देखा था। वो ट्रेन से उतरा और प्लेटफॉर्म से उतरकर रेलवे लाइन के साथ साथ कलकत्ता की तरफ चल पड़ा। कभी कभी रेलवे यार्ड में भी ट्रेन की आमद के मौके पर कोई न कोई टिकट चेकर मौजूद होता, मगर ये पैसेंजर ट्रेन थी और कठियाली का स्टेशन भी छोटा था। शेरखान रेलवे पटड़ी के साथ साथ चलते वहां पर आ गया जहां रेलवे का खारदार जंगला खत्म हो जाता था और पटड़ी की दोनों जानिब धान के खेत शुरू हो जाते थे। जहां से वो खेतों में चलने लगा और एक चक्कर लगाकर गया के शहर में आ गया। बुद्ध मत के पैरोकार इस शहर को बड़ा मुकद्दस मानते हैं। ये वो शहर है जहां महात्मा बुद्ध को एक दरख्त के नीचे ज्ञान हुआ था और उन्होंने जिंदगी के दुखों का राज पा लिया था। शहर की आबादी बहुत बढ़ गई थी और शहर के बाहर भी नई कॉलोनियां आबाद हो गई थी। सुबह का वक्त था, शहर की जिंदगी बेदार हो चुकी थी। शेरखान एक कॉलोनी में आ गया। सड़क के किनारे उसे एक चाय की छोटी सी दुकान नजर आई। वो दुकान के अंदर जाकर बैठ गया। उसने चाय के साथ मक्खन लगवाकर 3 स्लाइस मंगवाए और खामोशी से नाश्ता करने लगा। सावित्री के दिए हुए पैसे उसकी जेब में मौजूद थे। जहाँ उसने एक आदमी से अड्डे का पूछा जहाँ से आगे बंगाल की तरफ लारियां जाती हूँ। उसने कहा, तुम्हें कहाँ जाना है? शेरखान को उस आदमी से इस सवाल की तवक्को नहीं थी। उसने यूं ही कह दिया, पटना जाऊंगा, ट्रेन रात को आएगी, मुझे पटना जल्दी पहुंचना है। उस आदमी ने कहा, पटना जाने के लिए तो तुम्हें रास्ते में 2 लारियां बदलनी पड़ेंगी। तुम यहाँ से हजारीबाग चले जाओ, वहाँ से तुम्हें पटना जाने वाली ट्रेन मिल जाएगी। शेरखान को हजारीबाग का नाम सुनकर याद आ गया कि हजारीबाग तो सूबा बंगाल की सरहद के करीब ही वाक़ है और वहाँ से आगे आसनसोल है जहाँ से बंगाल शुरू हो जाता है। उसने कहा, अच्छा देखता हूँ भाई। वो चाय की दुकान से निकला और सीधा लारी अड्डे पर आ गया। कुछ ही देर बाद उसे हजारीबाग जाने वाली लारी मिल गई। हजारीबाग वहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर था, लेकिन वो हजारीबाग पहुँच गया। जहाँ से उसे कलकत्ता जाने वाली एक मेल ट्रेन मिल गई और वो कलकत्ते के होड़ा स्टेशन पर उतर गया। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। कलकत्ता शहर जाग रहा था। हर तरफ रोशनियां जगमगा रही थी। कलकत्ता का शुमार भारत के बड़े शहरों में होता है, बल्कि इसे भारत का सबसे गुंजान आबाद शहर भी कहा जाता है। इस शहर की तारीख और बंगला सकाफत बड़ी कदीम है। शेरखान को अपने कश्मीरी दोस्त का घर मालूम था कि कहाँ है। उसने ऑटो रिक्शा लिया और सीधा उसके मकान पर पहुंच गया। वो शेरखान को देखकर हैरान भी हुआ और खुश भी। दोनों दोस्त गले लगकर मिले। जहाँ शेरखान के कश्मीरी दोस्त का असली नाम नहीं बताया जाएगा, उसका फर्जी नाम अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला ने शेरखान के बोसीदा कपड़ों से अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी जगह से फरार होकर आया है। उसने कहा, सबसे पहले नहा धोकर कपड़े बदलो, खाना खाओ और फिर आराम से सो जाओ, बाकी बातें सुबह को होंगी। शेरखान ने गुस्ल किया, कपड़े बदले, खाना खाया और सो गया। खुदा जाने वो कब का जागा हुआ था। सावित्री के मकान पर भी वो कुछ देर ही सो सका था। अब्दुल्ला के मकान पर वो गहरी नींद सो गया। दिन के 10 बजे उसकी आंख खुली। अब्दुल्ला अपनी दुकान पर नहीं गया था। दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बातें करने लगे। शेरखान ने उसे काफी कुछ बता दिया, काफी कुछ नहीं बताया। बहरहाल उसने कहा, अब मुझे जितनी जल्दी हो सके कश्मीर पहुंचा दो, मगर लखनऊ बरेली का रास्ता मेरे लिए महफूज नहीं है। तुम मुझे क्या मशवरा देते हो? अब्दुल्ला
ने कहा, कश्मीर जाने का रास्ता तो लखनऊ बरेली से होकर ही जाता है। तुम यही कर सकते हो कि जब तक हालात नॉर्मल नहीं हो जाते मेरे पास रहो। शेर खान ने कहा, लेकिन अब्दुल्ला, मेरा कश्मीर के महाज पर जल्दी पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे शाहिद अली के बारे में भी कुछ पता नहीं कि लंदन में मफरूर होने के बाद उस पर क्या गुजरी, वो कश्मीर पहुंचा है या नहीं। कश्मीर के महाज पर मुजाहिद तुराबी को हमारी बड़ी जरूरत है। अब्दुल्ला कहने लगा, मुझे थोड़ा मौका दो, मैं कोई तरीका सोचता हूँ। कलकत्ते में शेर खान को रहते एक हफ्ता गुजर गया तो उसने अब्दुल्ला से कहा, भाई इससे ज्यादा दिन मैं यहाँ नहीं रुक सकता। मैं आज रात की ट्रेन से अमृतसर की तरफ निकल जाऊंगा। अगले हफ्ते यहाँ से हिंदू यात्रियों का एक जत्था जम्मू माता जी के दर्शनों को जा रहा है। अगर तुम मुनासिब समझो तो उसके साथ भी जा सकते हो। जो आदमी इस जत्थे की यात्रा का इंतजाम कर रहा है वो मेरा जानने वाला है। मैं उसे कहकर तुम्हें जत्थे में शामिल करवा सकता हूँ, लेकिन सोच लो क्या हिंदू यात्रियों के जत्थे में तुम महफूज होगे। शेर खान ने कहा, अमृतसर तक तो इस जत्थे की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन अमृतसर के आगे और खास तौर पर जम्मू के इलाके में दाखिल होते ही CID इस जत्थे के यात्रियों की निगरानी शुरू कर देगी और एक एक यात्री से पूछगिछ हो सकती है। वहाँ अगर इंटेलिजेंस वालों को मुझ पर जरा सा भी शक पड़ गया तो बना बनाया काम बिगड़ सकता है। अब्दुल्ला ने कहा, ये तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ट्रेन में तो तुम्हें सारा रास्ता इंटेलिजेंस वालों का खटका लगा रहेगा। यहाँ तो सिर्फ जम्मू के इलाके में पहुँचने के बाद ही कुछ हो सकता है। तुम अमृतसर से ही जत्थे से अलग हो सकते हो। यात्री यही समझेंगे कि तुम किसी दूसरे मंदिर की यात्रा को चले गए हो और अपने आप जम्मू पहुँच जाओगे। शेर खान सोच में पड़ गया। अब्दुल्ला का ख्याल दुरुस्त था। अगर वो यात्रियों के साथ चला जाए तो कम से कम अमृतसर तक वो बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। सिर्फ इस बात का खतरा है कि लखनऊ स्टेशन पर अगर टॉर्चर सेंटर का चीफ मालिक राम मौजूद हुआ तो वो उसे पहचान न ले। अव्वल तो ये जरूरी नहीं कि इंटेलिजेंस चीफ मालिक राम उस वक्त लखनऊ स्टेशन पर मौजूद हो जब यात्रियों का जत्था वहां से गुजर रहा हो। दूसरे, अगर वो मौजूद हुआ भी तो शेर खान अपना हुलिया ऐसा बनाएगा कि वो उसे कभी नहीं पहचान सकेगा। चुनाचे शेर खान ने जम्मू जाने वाले हिंदू यात्रियों के साथ जाने का फैसला कर लिया। अब्दुल्ला उसी रोज जत्थे के इंतजाम करने वाले अपने वाकिफकार से मिला और उसे बताया कि पंजाब से उसका एक हिंदू दोस्त आया हुआ है, वो भी जत्थे के साथ जम्मू जाना चाहता है, उसे भी साथ लेते जाओ। जत्थे के मुंतजिम ने कहा, ठीक है अब्दुल्ला बाबू, इसको परसों मेरे मकान पर भेज देना, हम लोग पंजाब मेल में जाएंगे। पंजाब मेल आजकल शाम को होड़ा स्टेशन से चलती है, तुमको तो मालूम ही है। अब्दुल्ला ने आकर शेर खान को बताया कि काम हो गया है, परसों दोपहर के वक्त तुम तैयार हो जाना। शेर खान ने पूछा, जो यात्री जम्मू जा रहे हैं इनमें कोई इंटेलिजेंस का आदमी तो नहीं है? ये जरूर मालूम कर लेना। अब्दुल्ला ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, ये लोग किसी दूसरे मुल्क की यात्रा को नहीं जा रहे कि इनमें किसी CID वाले की जरूरत पड़े। अपने मुल्क के यात्री हैं, सारे सीधे साधे बंगाली हैं। शेर खान ने कहा, फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी पूरी तरह छानबीन कर लो। तुम कहते हो तो मैं कल ही इस बारे में तहकीकात कर लूंगा। अब्दुल्ला ने जवाब दिया। शेर खान कहने लगा, मुझे सिर्फ लखनऊ से गुजरते हुए खतरा है, क्योंकि लखनऊ की पुलिस मुझे पहचान लेगी। इस खतरे के पेश नजर मैं अपना हुलिया बदल कर सफर करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला ने पूछा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें दूसरे यात्रियों की तरह बंगाली लिबास में सफर करना चाहिए। तुमने यात्रियों से कोई अलग हुलिया बनाया तो लोगों को खामखा तुम पर शक होगा। शेर खान ने कहा, ये तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं बंगाली लिबास में हुआ तो किसी ने मुझसे बंगला जबान में बात की तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? अब्दुल्ला ने कहा, मामले को इतना ज्यादा कुरेदने की जरूरत नहीं भाई। मैंने जत्थे के लीडर को तुम्हारे बारे में बता दिया है कि तुम पंजाब के रहने वाले हो, मेरे दोस्त हो और हिंदू हो। मैंने लीडर को तुम्हारा नाम केदारनाथ बताया है, तुम भी अपना नाम यही बताना। और फिर जहाँ सब लोग ज्यादातर हिंदुस्तानी में ही बात करते हैं। दूसरे दिन अब्दुल्ला ने दोपहर के बाद आकर कमांडो शेर खान को बताया कि उसने पूरी तसल्ली के साथ छानबीन कर ली है और यात्रियों के जत्थे के साथ इंटेलिजेंस का कोई आदमी नहीं है। यात्रियों में से कोई दुकानदार है, कोई चाय की दुकान का मालिक है और कोई स्कूल टीचर है। शेर खान बोला, अगर तुमने तसल्ली कर ली है तो मुझे फिक्र की जरूरत नहीं। अल्लाह का नाम लेकर कल यात्रियों के जत्थे के साथ चल पड़ूंगा। एक बार जम्मू पहुंच गया तो फिर समझो कि मैं कश्मीर के महाज पर पहुंच गया। उससे अगले रोज कमांडो शेर खान ने जम्मू जाने वाले हिंदू यात्रियों के जत्थे में केदारनाथ नाम का हिंदू बनकर शामिल होना था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।